session. Myself, Arfa Farooq, General Member of ICE Student Chapter. Starting with the name of Allah, I would like to call Numan Ahmed for the recitation of Holy Quran. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Jazakallah Numan Ahmed. The mission of ICE is to put civil engineers at the heart of society. ICE is the center for the exchange of knowledge and a provider of resources to encourage innovation and excellence in the profession worldwide. Their 95,000 members helps to create the structures and systems that sustain society. They are responsible for designing, building, maintaining, and improving. ICE makes sure that the high standards to become a professional civil engineer are met. It's important for us to keep telling the public about what civil engineers do. The ICE has student chapters in several countries, including Pakistan, India, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Poland, UAE, etc. Maintaining our tradition, we bring you an informative session about clearing CSS Central Superior Service Exam in collaboration with Women Engineering Club and UET Stars Finder Club. To become a CSS officer is a dream of thousands of people in Pakistan because they want quick recognition in society. And if you have passed the CSS exam and become a dignified officer, it is considered a great achievement in Pakistan. A dream does not become reality through magic. It takes sweat and determination and hard work. Today we have the live example of such a courageous person who turned his dream into a reality by believing in Allah and his hard work, and is currently living his dream. Engineer Aftab Munir, who recently cleared his CSS exam and mashallah stood 8th across Pakistan. Thank you, Sir Aftab Munir. We literally envy you, sir. We appreciate you being here and for taking your time to join us. It's an honor for us that former student representative engineer Salim Noor is present among us. He was also student section representative of ICE for academic year 2019 to 2020. And all the credit of this informative webinar goes to him. Our guest speaker joined us on the request of Sir Salim Noor. Before calling our guest speaker, I would like to call engineer Salim Noor and say a few kind words. Sir, over to you. जज़ाकल्लाह अरफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रामी क़दर सामीन, बिलाखिर कई रोज़ पर मुश्तमिल इंतज़ार के लम्हात इख्तिताम पज़ीर हुए और अब से चंद मिनट के बाद मेरे और आपके मादरे इल्मी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला का वो स्पोर्ट जिसने CSS का इम्तिहान, जिसे अहले इल्म मुकाबले का इम्तिहान के नाम से भी जानते हैं, मैं पहली ही कोशिश में 8वीं नुमायां पोजीशन हासिल करने के बाद अब अपनी ज़ुबान से अपनी कामयाबी की कहानी सुनाएंगे। आज के इस कामयाब प्रोग्राम का सहरा सबसे पहले SN मकबूल UET स्टार्स फाइंडर क्लब के प्रेसिडेंट समेत उन तमाम जूनियर तलबा और तालबात को जाता है जिन्होंने मुझसे ये दरख्वास्त की कि हमारी इंजीनियर मोहम्मद आफ्ताब मुनीर से मुलाकात करवाई जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ इंजीनियर मोहम्मद आफ्ताब मुनीर का, जिन्होंने मेरी एक बार कही बात की लाज रखते हुए वक्त अता किया और आज की इस पुरवकार तकरीब का हिस्सा है। मुझे फ़ख्र है कि आज ICE स्टूडेंट चैप्टर UET टेक्सला के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। माजी करीब में बतौर स्टूडेंट सेक्शन रिप्रेजेंटेटिव मैं भी इसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा रहा हूँ। मेरा मादरे इल्मी UET टेक्सला
जहां मुझे बतौर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव तलबा की नुमाइंदगी का हक हासिल रहा। आज इस अदारे के फ़र्द इंजीनियर मोहम्मद आफ्ताब मुनीर ने अपनी कामयाबी से मादरे इल्मी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। काबिल फ़ख्र बात है कि आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की दरख्वास्तें हमें कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत मुल्क की कई यूनिवर्सिटियों से मौसूल हुई। अदारा हादा में मेरा हमजमात और 4 साला दौरे तालिब इल्मी का साथी इंजीनियर मोहम्मद आफ्ताब मुनीर मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उसकी कामयाबी की कहानी सुनने के लिए मुल्क के तुलो अर्ज से हमें दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, वक्त आ पहुंचा है कि आप अपने जहनों में कुलबुलाते सवालात सिविल 2 के 16 सेक्शन सी के रोल नंबर 151, यहाँ मेरी मुराद इंजीनियर मोहम्मद आफ्ताब मुनीर हैं, आप उनसे अपने सवालात पूछकर अपने बेकरार दिलों को सुकून करार दिला सकते हैं। बिना किसी तखीर के रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। Now, without further ado, I will turn this time over Sir Aftab Munir. अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आइस का, टेक्सला का, एक्स न्यूज़ का, सलीम, इंजीनियर सलीम नूर साहब आपका, कि आपने मुझे दावत दी कि मैं आके अपने ख्यालात का इजहार करूं और अपनी जो है जर्नी उसका थोड़ा सा अहवाल बयान करूं। आवाज़ आ रही होगी मेरे ख्याल से सबको। एम आई ऑडिबल? Yes, you're audible. ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब मुनीर है और मैं यूडी टेक्सला से ग्रेजुएट हूँ। 16 सेशन था मेरा, 2020 का ग्रेजुएट हूँ मैं। और बाकी जो मेरी स्कूलिंग और हायर स्कूलिंग है वो रावलपिंडी से ही है। मेरी मैट्रिकुलेशन आर्म पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ऑर्डिनेंस रोड से है और मेरी जो हायर सेकेंडरी यानी कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग थी वो फौजी फाउंडेशन कॉलेज से थी। और सीएसएस की जर्नी से रिलेटेड जो ये है कि मैंने बैचलर्स के फ़ौरन बाद, बल्कि लास्ट डेज में आप कह लें, मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, प्रिपरेशन को, रिटर्न प्रिपरेशन को, और फैब 2021 में पेपर्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह ना फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो रिटर्न क्लियर किया और इंटरव्यू भी क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में 8 पोजीशन हासिल की। तो उसके लिए अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अपने ऑप्शनल्स का आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑप्शनल्स मेरे जो थे वो पॉलिटिकल साइंस थे, फिजिक्स है, जेंडर स्टडीज है और पंजाबी है। और बाकी आप जो है इनका सिलेक्शन का आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिस बेसिस पे मैंने ये सब्जेक्ट्स रखे थे। उनमें सबसे पहले तो आपका देखें, आप भी सब इंजीनियर्स हैं माशाल्लाह। आप आने वाले वक्त के इंजीनियर्स हैं, आप उनको सर्व करेंगे। तो आप से जो मोस्टली एस्पायरेंट्स हैं सीएसएस के, तो जो सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया है उसमें 2 से 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड आ जाता है। तो हम इंजीनियर्स को मोस्टली सब्जेक्ट्स जो है वो ऐसे सच नहीं मिलते जिनको हम सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड है। उसमें फिजिक्स मैंने इसीलिए रखा था, ऑल दो सिविल इंजीनियर्स जो है वो सिविल फिजिक्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ते नहीं है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, लेकिन स्टिल जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, उनके लिए मोस्टली ज्यादा सूटेबल होता है। बट स्टिल मैंने ये चूज किया। उसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस है उसको चूज करने का जो है वो ये था कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस ये है कि इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है, आपको इसका एरियाज कवर करने में टाइम कम लगता है। इसका जो है वो सारा सिलेबस आईआर के बनिस्बत लिमिटेड स्कोप है इसका। आईआर जो है वो ब्रॉड बेस्ड सब्जेक्ट है। तो जो आप सेकंड क्राइटेरिया, आप जिस बेसिस पे आप सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, वो आप ये देखते हैं कि आपका उस सब्जेक्ट का जो है वो आपके साथ कंपेटेबल भी है या नहीं। आप वो कर सकते हैं, अगर आप रट्टे वाले स्टूडेंट हैं, आप जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं, आप एनालाइज ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, तो दूसरी चीज जो है वो आप ये जहन में रखते हैं कि आप किस चीज के साथ कंपेटेबल होंगे। और फिर उसके बाद आता है स्कोरिंग ट्रेंड, ठीक है। तो अगर आप पंजाब से हैं और पंजाब में कंपेटिटिव एग्जाम्स का बहुत टफ कंपटीशन है और आपको अगर एलोकेशन चाहिए तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ता है।
अगर आप स्टैंड आउट सिर्फ मार्क्स की बेसिस पे ही होते हैं। तो तीसरा जो क्राइटेरिया वो स्कोरिंग ट्रेंड है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं CSS के ऑप्शनल्स में जो हमेशा से हाई स्कोरिंग रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा लो स्कोरिंग या बिलो एवरेज आप कह लें, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो फिर आप तीसरा क्राइटेरिया इसको भी आप जहन में रखते हैं कि यार आइदर इट इज स्कोरिंग और नॉट। ठीक हो गया। अब मैं आपको जो है वो छोटा छोटा अपनी सारे सब्जेक्ट्स का स्ट्रेटजी वगैरह एक बता देता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो मैं ही आंसर कर दूँ। उसके बाद although हम क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो करेंगे, तो मैं आपको छोटा छोटा जो है वो सारे सब्जेक्ट्स का टेक्निक बता देता हूँ जो मैंने यूज की थी। सबसे पहले ऐसे से हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे जैसे कि आप सबको शायद आइडिया हो भी कि द टफेस्ट एग्जाम है, इसका फेलियर रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने स्ट्रेटजी यूज की थी वो यही थी कि एक तो ऐसे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्किल है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश राइटिंग अच्छी है, आपका एक्सप्रेशन बेहतर है, तो आप बेनिफिट में रहते हैं। ठीक है, आपको एक एज मिलता है बाकी कैंडिडेट से। अगर आप नहीं है तो आपको पहले अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी डेफिनेटली। आपका एक्सप्रेशन है, आपका राइटिंग स्टाइल है, आपको इंप्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी मैंने डिप्लॉय की या एम्प्लॉय की, उसको मैंने जो है ऐसे को डोमेन्स में डिवाइड कर लिया। आपकी मेजर 15 थीम्स बनती हैं, 15 to 20। फॉर एग्जांपल आप इसमें डेमोक्रेसी, क्लाइमेट, आपका सोशल मीडिया आ जाता है, आपका एजुकेशन है, ठीक है, इस तरह की गवर्नेंस है, ग्लोबलाइजेशन है, इस तरह की 10 to 15 मेजर थीम्स बना के इन पे आपने थीम वाइज कंटेंट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यही किया। मैंने 3 से 4 माह जो है वो न्यूज़पेपर से, इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह, जर्नल्स वगैरह से मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट किया, और 3-4 माह जब इतना वो हुआ कि यार अब मटेरियल इनफ है, अब इस पे ऐसे एक बिल्ड ऑन किया जा सकता है, तो ऐसे की प्रैक्टिस स्टार्ट की। वीकली बेसिस पे एक ऐसे लिखता था मैं, और उसको एवेलुएट करवाया टीचर्स से अपने से, जो वगैरह भी मिस्टेक्स वगैरह निकलती थी उनको ओवरकम करने की कोशिश की। ठीक है, तो ऐसे की ये स्ट्रेटेजी थी छोटी सी कि आप अपने पहले कंटेंट करते हैं, उसके बाद आपकी रिटर्न प्रैक्टिस है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट गेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ा प्रेसी का बता देता हूँ आपको। प्रेसी का ये था कि इसमें 50% जो है ऑलमोस्ट आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो जाता है। उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके एमसीक्यूज पार्ट है, इसके अलावा आपकी जो है वो फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपके इडियम्स हैं, आपकी सेंटेंस करेक्शन है, पंचुएशंस है, इसको आप ऑब्जेक्टिव पार्ट ऐसा डील कर लेते हैं। तो इनका तो मोस्टली यही तरीका होता है कि आइदर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वोकैबुलरी वैसे ही अच्छी होती है, उनकी रीडिंग ब्रॉड होती है, तो उनको मतलब थोड़ी मेहनत ही करनी पड़ती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको, जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इंग्लिश में, उनको लिए फिर यही होता है कि यार उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है, उनको वो कैब जो है अपनी इंप्रूव करनी पड़ती है, जीआरई की लिस्ट है अक्सर वो मेमोराइज करनी पड़ती है। ठीक है, और जो बाकी इसका सब्जेक्टिव पार्ट है प्रेसिडेंट कंपोजिशन का, उसके लिए यही है कि आपकी प्रैक्टिस है, आप पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करें एंड गेट देम एवेलुएटेड। ठीक है, उसके लिए कोई और वे आउट नहीं है। उसके बाद करंट अफेयर्स का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर्स का ये है कि आपका ये होता है कि आप जो आपकी मेजर करंट अफेयर्स में भी जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं, आप उसको हाईलाइट करके आप उनको 1 by 1 प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अच्छे रिसोर्सेज से पढ़ें। और अच्छे रिसोर्सेज से जो मेरी मुराद है वो ये है कि आप पाकिस्तान में आपके पास डॉन है, आपके पास रिसर्च जर्नल्स हैं, रिसर्च टैंक्स हैं जो कि अपने क्वार्टरली जर्नल्स पब्लिश करते हैं, जिनमें ISSI है, IPRI है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल आर्टिकल्स आ जाते हैं कुछ। इंटरनेशनल जो है उसमें आपके रिसोर्सेज हैं, उसमें डिप्लोमेट हो गया, TRT वर्ल्ड है, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, इनके आर्टिकल्स जो हैं वो अच्छे होते हैं। तो इनसे आप अपना जो है नोट्स बनाते हैं, करंट अफेयर्स के आपके साथ साथ नोट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, वो तो चूंकि हम इंजीनियर्स हैं तो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया तस्वर किया जाता है और होना भी चाहिए। तो उसका मैथ पोर्शन तो एज सच आपको जरूरत नहीं होती, आपको उसमें मोस्टली मैट्रिक लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल तक ही होती है उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है। और जो साइंस पोर्शन है वो भी मोस्टली मैट्रिकुलेशन या FSC लेवल का होता है, तो वो हो जाता है। तो उसके लिए आप ये अगर बुक अगर कर पढ़ लें तो वो इनफ है। इसके बाद इस्लामियात का ये है कि इस्लामियात की भी मोस्टली मैंने 1 बुक स्ट्रेटजी यूज की थी। ठीक है, इस्लामियात को मैंने किया था हाफिज करीमदाद चुगताई की बुक से, इंग्लिश में मैंने उसको सेलेक्ट किया था। और उसका ये था कि इस्लामियात में आपका मेन फोकस जो मेजोरिटी, एक तो आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट है। ठीक है, वो प्राइम इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट सबसे प्राइम आपकी चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स है। ठीक है, वो आप कर लेते हैं। उसके बाद आपका इस्लामियात में जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी रेफरेंसेस हैं, आप आयात का, अहादीस का, ठीक है, आप मशाइख इस्लाम का आप कितने अच्छे से उनको कोट कर रहे हैं।
ठीक है, उनके रेफरेंसेस के साथ। तो ये चीज़ आपको बाकी कैंडिडेट से एज देती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स रह गया कंपल्सरीज में। पाकिस्तान अफेयर्स का ये था कि इसका बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है। और CSS का ये कहा जाता है कि ये मोस्टली आपकी स्मार्ट स्टडी है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी में फिर इस तरह है कि आप पाक अफेयर्स का एनालाइज करते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं या कौन से एरियाज हैं वो इंपॉर्टेंट है या रिकरिंग है, बार बार आते रहे हैं, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा कम अटेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो पाक अफेयर्स का इस तरह मैनेज आप कर सकते हैं। बाकी इसकी बुक्स जो है वो तकरीबन सब अकेडमीज की जो आप लोकली अवेलेबल हैं तभी सभी जो है वो तकरीबन अच्छी हैं, ठीक है। और इसका जो आपका डिफरेंस आता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और आपका पेपर अटेम्प्टेशन है, आप कितना उसको यूनिक बनाते हैं अपनी वर्ड्स के साथ खेल के, ठीक है। इसके बाद ऑप्शंस पे थोड़ी हम बात कर लेते हैं। ऑप्शंस में मेरे सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस था। उसके लिए जो सोर्सेज बता देता हूँ आप लोगों को। वेस्टर्न फिलोसोफर्स के जो थे वो जुड हर्मन की बुक है पॉलिटिकल थॉट लेटर टू प्रेजेंट, वो यूज की थी। जो पेपर 1 का पार्ट बी है और जो मुस्लिम फिलोसोफर्स हैं उनके लिए मजरुल हक की बुक है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और जो पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस का उसके लिए HSM पब्लिशर्स की बुक है पॉलिटिकल साइंस 1 एंड 2, वो यूज की थी मैंने, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको लगे कि बीच में कहीं आवाज वगैरह या डिस्टोर्शन है तो आप मुझे रोक के बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो था वो फिजिक्स का पार्ट आ जाता है। फिजिक्स में ये है कि आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे नोवा ज्वाइन की थी, नोवा के टीचर्स के लेक्चर्स भी अच्छे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको HRK की बुक है, उससे भी हेल्प हो जाती है। जेंडर स्टडीज जो है उसकी बात करते हैं। जेंडर स्टडीज में मैंने एक बुक यूज की थी सिर्फ, वो है अमानुल्लाह गोंदल साहब की बुक है, नोवा अकेडमी की पब्लिकेशन है। वो बुक इनफ है। इसके साथ आप फिर हर सब्जेक्ट के लिए वो तो आप जितना कहा जाता है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना आपका मीठा होगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब से आप इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स आप पढ़ सकते हैं जेंडर स्टडीज के लिए, एक्लियम और वेल रिसर्च और जो रिनाउंड ऑथर्स हैं उनके जो आर्टिकल्स और जर्नल्स वगैरह है वो आप पढ़ेंगे तो आप का जो है वो सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद पंजाबी जो लास्ट सब्जेक्ट है उसके लिए अगवाई की बुक जो है वो मैंने यूज की थी, वासिफ अली वासिफ की बुक है, और वो मोर देन इनफ है, ठीक हो गया। ये शॉर्ट्स जो था वो आपको सारे सब्जेक्ट्स का मैंने नो हाउ दे दिया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन आंसर्स का सेशन मेरे ख्याल से स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरी आप लोगों को कोई चीज मिस आपको लगता है हो गई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी आफ्ताब भाई, शुक्रिया, आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा अभी प्रेजेंट किया। तो सबके लिए अनाउंसमेंट ये है कि अभी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होने लगा है, तो जिसने कोई भी क्वेश्चन करना है वो अपना हैंड रेज करेगा, हम उसको बारी बारी अलाउ करेंगे। तो जैसे ही वो अपना क्वेश्चन कर ले अपना माइक बंद कर दे ताकि भाई की आवाज़ ठीक आ जाए। चलें शुएब भाई, आप स्टार्ट करें बारी बारी। Yes, इसके लिए I'll ये let क्वेश्चन you. आंसर्स के लिए कि 1 बाय 1 सबको मौका मिलेगा, तो आप अपने हैंड रेज करें और आफ्ताब भाई से क्वेश्चन पूछें। Please keep one thing in your mind. Please do not repeat the question if someone have same question. So go ahead and raise your hands. I will allow you one by one. Yes, Muhammad Abdullah. क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह मैं 21 सेशन का हूँ, मैं यूटी टेक्सला में अभी सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट की है, तो मैं कैसे मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ इन 4 सालों में अपनी इंजीनियरिंग भी करूँ और साथ साथ अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करूँ कि मुझे CSS देना है अगर अपीयर होना है तो। अच्छा अब्दुल्ला, इसके लिए ये है कि यार एक तो आप जो है अपनी फिलहाल अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को फोकस करो, ठीक है, उसको अच्छे से करने की कोशिश करो। और साथ आप ये कर सकते हो कि आप इंग्लिश को जो है एक्सप्रेशन को पहले तो आप देखो कि आपकी ग्रामेटिकल इंग्लिश अगर साउंड है तो फिर आपको उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव करो और उसके लिए ये है कि आप रीडिंग करो, ठीक है। आप डॉन वगैरह, आप बाकी अगर इंटरनेशनल न्यूज पेपर्स पढ़ सकते हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो आप डेली बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स या 1 घंटा इसके लिए निकाल के इसको न्यूज पेपर्स वगैरह पढ़ लिया करो। बाकी ऐसा मेजर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। Yes, Waqar Hassan. अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो जो पंजाबी है उसके लिए कोई सेपरेट टीचर्स की ज़रूरत है या वैसे हम जैसे पंजाबी बैकग्राउंड तो कर सकते हैं।
और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब हमारी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है क्योंकि प्राइवेट सरकारी स्कूल था और अभी हम 7th सेमेस्टर में हैं मैकेनिकल। तो क्या उसके लिए टिप्स होंगे क्योंकि इंग्लिश बहुत है। और थर्ड, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज कैसा है? अच्छा, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये पंजाबी जो है वो हो जाती है बगैर ट्यूटर के। ठीक है, आप अगर पंजाबी, आप उर्दू अगर आपके लिखने में अच्छा है, ठीक है, और पंजाबी आपको पढ़ने में समझ आ जाती है तो आप बगैर ट्यूटर के कर सकते हो जाती है। दूसरा आपका क्वेश्चन था वो, सॉरी आई फॉरगॉट, रिपीट कर दें आप एक एक करके। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि अब 7th सेमेस्टर में हम, हमारे पास टाइम कम है और मैं चाहता हूँ जी जी कि जी। फर्स्ट टाइम तो इंग्लिश। इंग्लिश का ये है कि एक तो आप उसको आप अपना जो है बेसिक से, अगर आपको लगता है मिस्टेक ज्यादा है, ठीक है, तो उसको आप बेसिक से स्टार्ट करो। ठीक है, कोई एक इंग्लिश की अच्छी बुक ले लो, माइकल स्वान की अच्छी ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर इंग्लिश, आप उसको ले लो। उससे आप रूल्स वगैरह देख के डेली के ग्रामर की जो उसमें वो है प्रैक्टिसेस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, और रीडिंग को जो है रीडिंग की आदत बना लो। ठीक है, आप कोई एक आर्टिकल वगैरह डेली का पढ़ लिया तो विद टाइम जो है आपका इंप्रूव हो जाएगी इंग्लिश। और तीसरा आपका क्वेश्चन था गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसीज का। तो ये मेरा ऑल्दो ऑप्शनल नहीं है, लेकिन इसका ये है कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड जो है स्टेबल है। और इसका एक तो ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको इसका पब्लिक पॉलिसीज और गवर्नेंस दोनों चीजें हैं और टेक्निकल चीजें हैं, आपको पॉलिसी फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। तो जेनेरिक नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड इसका स्टेबल है। Yes, Chaudhry Hassan Nisar. Hassan Nisar, you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने किस तरह से 4 सालों में मैनेज किया है कि मतलब इंजीनियरिंग भी की है साथ साथ और आपने थीसिस को भी टाइम दिया है? यार इसका यही है कि मैंने इंजीनियरिंग के दौरान सीएसएस को टाइम नहीं दिया। मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट किया था, जब हमारा फाइनल सेमेस्टर्स के एग्जाम्स होने वाले थे, फाइनल्स, उस वक्त मैंने तैयारी स्टार्ट की है। पहले मैंने सीएसएस की तैयारी नहीं की। Yes, Suhaib. भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा आफ्ताब भाई, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हूँ यूईटी लाहौर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। मेरा 8th सेमेस्टर चाह रहा है और मेरा ये प्लान था कि मैं ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद एक एकेडमी ज्वाइन करूँ ताकि मुझे बेसिक नो हाउ हो जाए कि मैंने किस तरह कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को प्रोसीड करना है। तो आपकी सजेशन चाहिए इस वक्त। जो मेरे सामने कैंडिडेट्स हैं, एक वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी है और दूसरी नोवा है, तो इनमें से कौन सी सूटेबल रहेगी? यार इसमें अगर आप लाहौर के रेजिडेंट हैं तो फिर वर्ल्ड टाइम्स बेहतर है, और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में है रेजिडेंट कोई तो उसके लिए नोवा बेहतर है। ठीक है, ये दो हैं इसके। अच्छा आफ्ताब भाई, मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ, मैं लाहौर का रेजिडेंट नहीं हूँ। तो जो नोवा है वो ऑनलाइन सेशन भी प्रोवाइड कर रही है, तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए मुझे? यार उसमें फिर आप अपना जो है वो ईज देख लो। ठीक है, अगर आप मूव हो सकते हो तो फिर आप हो जाओ, लेकिन इनका ऑनलाइन सेशन भी बेहतर ही है। मैंने जो है वो मैंने नोवा ही ज्वाइन की थी और मैंने ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया था नोवा का। ऑल्दो मैं पिंडी में रहता हूँ, लेकिन स्टिल मैंने ऑनलाइन सेशन प्रेफर किया था, तो कवर हो जाता है। तो बाकी आप अपना ईज देख लो जिससे आप सूटेबल है। ठीक है। और आफ्ताब भी एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता, अभी तक यानी मैंने बिगिनर्स लेवल पे मैंने स्टार्ट किया है काम, तो अभी तक जो सुनने में आ रहा है, लोग ये कहते हैं कि पंजाबी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मैंने पंजाबी के पास पेपर भी देखे, यानी एज अ स्टूडेंट मैंने कभी लाइफ में पंजाबी लिखी नहीं है, कभी पंजाबी बोली नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं टाइम लगा के पंजाबी को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँ? अगर तो पंजाबी बोली भी नहीं और रीडिंग करके भी उसकी समझ नहीं आ रही, फिर अवॉइड करो। लेकिन अगर बोलते रहते हो और पढ़ के समझ आ जाएगी तो फिर ठीक है, फिर रख लो आप, फिर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसको आपको रीडिंग में इशू आ रहा है तो फिर रहने दो, फिर और सेपरेट कर लो। Yes, Zunaira Tariq.
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि करंटली आई एम स्टडिंग इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ यूआईटी टेक्सला और मैं 8th सेमेस्टर में हूँ और मैं आगे परस्यू करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ अकेडमीज रहे, जैसे फॉर एग्जांपल नोआ है, तो वो अपना जो है सेक्शन जो है वो मार्च में स्टार्ट कर रही है, लेकिन जो मेरी डिग्री है वो एंड होगी बाय द एंड ऑफ जून, स्टार्ट जुलाई। तो मुझे अपनी प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, लाइक अभी से मैं कुछ इस तरह से ऑनलाइन सेशन या कुछ ज्वाइन करूँ, या फिर जब मेरी डिग्री खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं उसके राइट आफ्टर दैट मैं उसको परस्यू करूँ? देखिए, अगर तो आप अभी यूनिवर्सिटी से थोड़ा इजी है, अगर आपको लगता है कि साथ मैनेज हो जाएगा तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे आप बाकियों से एज पे रहेंगे, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो अगर तो आप यूनिवर्सिटी के साथ मैनेज कर सकते हैं तो आप पहले स्टार्ट कर लें। मैंने भी 1 वीक 2 वीक पहले स्टार्ट कर दिया था अपने फाइनल से, क्योंकि तब ऑनलाइन क्लासेस कोविड तो मैनेज हो जाता था। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप ज्वाइन करें। अच्छा, तो जो लोग क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो रहे हैं जिनकी, वो अपने हैंड्स लोअर कर दें। यस मतीन। आफ्ताब भाई, मेरी आवाज़ आ रही भाई? जी जी आ रही। आफ्ताब भाई, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक मेरा क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट जिसमें करंट अफेयर्स है, तो इसके हवाले से जो अभी तक सुनने में, जैसे जैसे सीनियर से सुनने में आया है कि जो मोस्ट रीसेंट इवेंट्स होते हैं ये पेपर उसमें से आता है, तो थोड़ा सा गाइड कर दें कि क्या हम अभी से तैयारी शुरू करें या 2022 के पेपर के बाद तैयारी शुरू करें, क्योंकि मैं 23 के अटेम्प्ट देना चाहता हूँ। करंट अफेयर्स को ऐसे करो कि यार आप अगर 2023 का अटेम्प्ट देनी है तो करंट अफेयर्स को अभी ना तैयार करो। उसमें जी जो आपका जो 1 साल के है ना इश्यूज आते वही हैं, लेकिन अभी आपको अगर आप अभी तैयार कर लोगे ना तो इश्यूज आपकी है कि उसमें नए नए डेवलपमेंट्स आते रहते हैं, तो आपको अपने नोट्स बार बार मॉडिफाई करना पड़ेंगे, जो कि एक हेक्टिक काम है। उसके लिए जी एडवाइस यही है कि आप पहले बाकी सब्जेक्ट्स कर लो। करंट जी अफेयर्स को एट द एंड करना, जब बाकी सब्जेक्ट सारे हो जाएंगे ना तो जी तब तक जो करंट डेवलपमेंट्स हैं वो सारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होंगी, जो कि पेपर में आ सकती हैं। तो तब आप करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट करना और पिछला पूरा साल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको आप साथ साथ फिर कर लेना जी इकट्ठा करके। जी। और भाई दूसरा, यस फतेह शेर। Assalamu alaikum, sir. First of all, congratulations very much on your success. वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर मेरे आपसे जो है 2 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, ठीक है। आपने जिस तरह बताया कि फॉरेन अफेयर्स वगैरह मैगजीन्स वगैरह पढ़ें, तो ऑलरेडी मैं फॉरेन अफेयर्स को तो रेगुलर पढ़ता हूँ, वो 2 मंथ्स बाद आता है, उसको मैं हमेशा पढ़ता हूँ। तो उसके मतलब ऐसे के मतलब ये है कि सर इट्स टू वास्ट, और इतने सारे कंटेंट को आखिर हम किस तरह स्ट्रीमलाइन करेंगे? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि सर फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान अफेयर्स की भी एग्जांपल दी, मैं पॉलिटिकल साइंस की भी एग्जांपल दूंगा कि देयर सिलेबस इज टू वास्ट। देखें, पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर्स ही सिर्फ पेपर है कि आई थिंक 20-25 प्लस हैं। तो किस तरह आखिर डील किया जाए? सिलेबस से स्ट्रेटजी ली जाए या फिर पेपर्स को देखा जाए और कंटेंट वगैरह को देखकर इस तरह तैयार किया जाए पेपर? ठीक है, और पहला जो आपका क्वेश्चन है ना उसके लिए ऐसे का ये है कि आप उसको देखते हो कि आप एक फॉर एग्जांपल थीम है तो उसमें ये देखते हो कि कितनी डायमेंशन से एंगल बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उस पर फिर आप अपना जब मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट करते हो ना तो आप ऐसी मतलब इतना कंटेंट आप इनफ आपको लगेगा, इतना आप कंटेंट इकट्ठा करेंगे जिससे आप किसी भी डोमेन से आपका एंगल से क्वेश्चन आ जाए, ऐसे में आप उसको आंसर कर सको और आपके पास अपने आर्गुमेंट्स के लिए 1 पैराग्राफ के लिए 1 पैराग्राफ के साथ आपके पास एक सपोर्टिंग एविडेंस हर पैराग्राफ के साथ हो, ठीक है। तो आप इतने कंटेंट इकट्ठा करना है हर डोमेन के अगेंस्ट, जिस मर्जी एंगल से क्वेश्चन आ जाए आप उसे आंसर कर सकें। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल आप जिस तरह पाक फेयर्स को मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी ऐसे ही है। आप जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो तकरीबन 20 से 22 वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, लेकिन मैंने 7 किए थे सिर्फ। तो इसमें यही है, आप पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करते हैं आपको पता लगेगा कि यार कुछ फिलोसफर्स बल्कि मोस्टली ऐसे हैं जो कभी आए ही नहीं है पिछले 5 से 6 साल में, ठीक है। तो उन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करो, जो मोस्ट रिकरिंग टॉपिक्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से करो, ठीक है, और जो कभी नहीं है उनको आप अवॉइड करो। यस हमजा अकरम।
आफ्ताब भाई पंजाबी के लिए कौन सा ऑथर को हम रिकमेंड करेंगे, आप किसको रिकमेंड करेंगे पंजाबी के लिए? पंजाबी की बुक मैंने बताई है यार, अगवाई, वासिफ अली वासिफ की किताब है। Yes, Farasat Hassan. Farasat Hassan, you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। So ये नेक्स्ट बोला था मेरे ख्याल से इनका शुरू। Yes, Zoya. Please be quick in your questions, Zoya. Sibghatullah Tahir, ask your question. अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई। वालेकुम सलाम। आफ्ताब भाई ये क्वेश्चन था मेरा कि इंग्लिश ग्रामर के लिए आप कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे इन सीएसएस पर्सपेक्टिव, अगर हम ड्यूरिंग डिग्री साथ साथ इंग्लिश वोकैबुलरी को, इंग्लिश ग्रामर स्ट्रक्चर को बिल्डअप करना चाहें तो कौन सी बुक आप रिकमेंड करेंगे? थैंक यू। ग्रामर की मैंने बुक बताई है, माइकल स्वैन की बुक है, इंग्लिश ऑक्सफोर्ड की बुक है, इंग्लिश प्रैक्टिस ग्रामर बाय माइकल स्वैन। Yes, Sayyid Ahsan Shah. Assalamu alaikum, Sir Aftab. First of all, I congratulate you on your success. Secondly, thank you so much for taking time and just giving a brief introduction of your journey. It was quite interesting and quite informative for us. सर जैसे हम सबको पता है कि CSS ऐसे जो है एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है किसी भी कैंडिडेट के लिए जो अपेयर हो रहा है CSS के लिए। सो आपने बार बार एक चीज़ का जिक्र किया है कि जो एक्सप्रेशन और जो आपका स्टाइल होता है दैट मैटर्स अ लॉट इन CSS ऐसे। सो मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कंटेंट की वेटेज है, जो एक पीस ऑफ राइटिंग है उसमें कंटेंट की वेटेज को कितना देखता है राइटर जब चेक कर रहा होता है, और उसके साथ साथ आपका जो एक्सप्रेशन है, जब लेट्स सपोज आपके सामने एक ऐसे का पेपर आया और उसमें एक ऐसे टॉपिक है जिस पर आपके पास बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन आपका जो राइटिंग स्टाइल है या जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा है और आप उस कम कंटेंट से एक अच्छा ऐसे बिल्ड कर सकते हो, तो उस ऐसे को अगर हम कंपेयर करें उस ऐसे से जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सो उसको वो कैसे, जो चेकर है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? और सेकेंडली मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो MPT का जो इंट्रोडक्शन हुआ है CSS में, आल्दो इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी इसको इजी बनाया हुआ था और ऑलमोस्ट आई थिंक 40,000 जो है ना कैंडिडेट्स इसको क्लियर कर चुके हैं, तो आप इसको आगे क्या देख रहे हैं? ये इसको थोड़ा सा इसके लिए कैंडिडेट्स को एक अलग से तैयारी कर लेनी चाहिए या उसी अपने फ्लो के साथ इसको जारी रखना चाहिए? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अच्छा, आपका पहला क्वेश्चन जो था उसके लिए ये है कि यार वो है जो आप ऐसे है ना, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका एक्सप्रेशन से मेरा मुराद आपकी देखें, एक तो होती है आपकी, कुछ कैंडिडेट समझ लेते हैं आपकी वर्बोसिटी। अब मैं वर्बोसिटी की बात नहीं कर रहा, आप प्लेन इंग्लिश बेशक लिखें, लेकिन एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं या जो आप बात पहुंचाना चाह रहे हैं एग्जामिनर तक, आप वो कितनी एफिशिएंटली पहुंचा पा रहे हैं अपने रिटन एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो ये चीज है, इसका भी इतना ही ज्यादा और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका कंटेंट है। आप जब एक आर्गुमेंट पुट अप करते हैं और आपके पास उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, तो वो एक आर्गुमेंट नहीं होता, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसे एक एविडेंस के साथ सब्सटेंशिएट कर देते हैं तो वो एक आर्गुमेंट बन जाता है, जो कि एक कन्विंसिंग पॉइंट होता है उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो दोनों चीजों की इक्वल इंपॉर्टेंस, आप दोनों चीजों को निगेट नहीं कर सकते। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था MPT से रिलेटेड, MPT का ये है कि इस साल तो उन्होंने टफ बनाया, इजी, बहुत इजी बनाया था,
चूंकि उन्होंने इसको ऐसा प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाना था CSS के उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ना, तो इसलिए इजी था। तो नेक्स्ट ईयर से एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको अभी इस चीज की टेंशन की जरूरत नहीं, अभी तो नेक्स्ट MPT में बहुत टाइम है। तो आप फिलहाल अपने CSS की तैयारी करो, जब MPT आएगा तो महीना 10-15 दिन जो है वो आप उसके लिए निकाल लेना सेपरेटली। मोहम्मद उज़ैर अफजल। अस्सलाम वालेकुम। सही, पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन बहुत ज्यादा। सही, क्वेश्चन मेरे ये हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक बुक से अगर पढ़ते हैं, जैसे आपने कहा फ्रॉम प्लेटो टू द प्रेजेंट या मदरुल हक साहब की बुक, तो सर जी हमें रिस्ट्रिक्टेड टू पॉइंट पे रहे तो ज्यादा जो है ना, तो हमें उसमें से नहीं मिल सकता, क्या कहते हैं हम, कंटेंट। हमें रिलाई करना पड़ता है कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज पे या ऑनलाइन वेबसाइट पे, जैसे कुछ है ब्रिटानिका, स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया। सही, उसके लिए मैं चाहता हूँ कोई आप गाइडेंस दे दें, कोई जो रिलायबल सोर्स हो हमारे लिए, जिससे अच्छा कंटेंट मिल जाए। और दूसरा ये है कि आपने कुछ जर्नल बताए करंट अफेयर के लिए, वो भी एक रिकमेंड कर दें कुछ। और तीसरा ये था कि आपने कहा था कि पेपर 2 में 2 बुक्स आपने रिकमेंड की हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन और फॉरेन पॉलिसी के लिए। अगर उसमें आप कोई जो बुक आप वो दोबारा रिपीट कर दें जो आपने कही थी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आपका पहला क्वेश्चन जो था उसके लिए तो ये है कि यार जो जूड हरमन की बुक है ना वो इनफ है, आपको इसके अलावा बाकी सोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पॉलिटिकल साइंस में हाई स्कोर है पाकिस्तान में, तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज है, यूट्यूब भरा पड़ा है, ठीक है, आपको उस पर वीडियोस बहुत ज्यादा पड़ी हैं, आप उससे देख सकते हो। स्कूल ऑफ लाइफ एक चैनल है, उस पर सारे फिलोसफर्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो अच्छी वीडियोस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन जो रिसर्च जर्नल्स हैं वो भी तकरीबन क्रेडिबल होते हैं मोस्टली, विकिपीडिया ना पढ़ना, उसके अलावा बाकी मोस्टली क्रेडिबल होते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि आप जो है करंट अफेयर्स के जो जर्नल्स हैं उनमें पाकिस्तान में एक है इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट ISSI, और दूसरा है IPRI, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इन दोनों के क्वार्टरली जर्नल्स आते हैं, ये अच्छे हैं, ठीक हो गया, तो इनको आप कर लें। और तीसरा जो बुक थी, आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, वो HSM पब्लिशर्स की बुक है, पॉलिटिकल साइंस 1 and 2। राजा वसीउर रहमान। आवाज आ रही है मुझे? जी जी आ रही है। भाई मेरा क्वेश्चन आपसे फिजिक्स से रिलेटेड है। मैंने उसके पास पेपर कंसल्ट किए हैं, उसमें जो थ्योरी पार्ट होता है वो तो रिलेटिवली इजी है। तो मैंने आपसे पूछना था कि उसके क्वेश्चन के आंसरिंग के लिए हम FSC टाइप का कंटेंट दे सकते हैं? मतलब आपकी क्या अप्रोच थी उनके आंसरिंग क्वेश्चन के? जो आपका पेपर 1 है वो होता है मोस्टली तकरीबन FSC लेवल का ही है, ठीक है, तो उसमें आप FSC लेवल का दे सकते हैं कंटेंट। लेकिन जो पेपर 2 है वो एडवांस्ड है, वो मास्टर्स लेवल का है, उसमें आप FSC लेवल का नहीं दे सकते, उसमें आपको एडवांस देना पड़ेगा। मोहम्मद एहसन खान। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आप हम एक टाइम पे हमने 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, सर हमारी टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए हमारी कि हम हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे सकें? और मेरा दूसरा सवाल सर ये था कि आप जो कह रहे थे कि हमें हमारा जो एस्से है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसी में काफ़ी बच्चे जो हैं वो रह जाते हैं, तो हमारी कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जो हम तैयार कर सकते हैं और हम हमारा एस्से जो है उसको मैक्सिमम कवर कर सकते हैं? सर ये डोमेन्स जो इंपॉर्टेंट है वो आप बता काइंडली। थैंक यू सर। ठीक है, ऐसे की डोमेन्स का आपको पहले बता देता हूँ। ऐसे की डोमेन्स का ये है कि आप, मैंने पहले भी बताया, जिस तरह इंट्रो में बता रहा था, आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, आपका गवर्नेंस है, ग्लोबलाइजेशन है, IT, सोशल मीडिया, जेंडर इक्वालिटी हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी आपका हॉट इशू चल रहा है दुनिया में, रशिया यूक्रेन का भी रिसेंटली चल रहा है, चाइना US का चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया कश्मीर जो है ये एक ट्रियो है, ये चल रहा है, साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है। इसके अलावा आपके फिर कुछ लिटरेरी टॉपिक्स आते हैं, तो इस तरह मतलब ये मेजर डोमेन्स हो जाती हैं, ठीक हो गया। और जो आपका वो क्वेश्चन था इससे पिछला, सॉरी आप क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, आई फॉरगॉट। ऐसा
सर मेरा सवाल था कि हम मैनेज कैसे करें 12 सब्जेक्ट्स को टाइम से हाँ हाँ सही है। कैसे प्रोपोर्शन से दें सर टाइम आउट उसको। इसके लिए आप ये करें कि यार आप एक तो अपना जो आपके पूरा आपके पास टाइम फ्रेम है ना उसको आप डिवाइड कर लें दो कैटेगरीज में। पहले आप एक मैक्रो टाइमलाइन बना लें जिसमें आप ये देखेंगे आप होलिस्टिकली आप फाइनलाइज जो है आप एंड अपना सिलेबस कब करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 2023 के अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप दिसंबर या बाय नवंबर जब भी आप फाइनलाइज करते हैं आप एक टारगेट सेट कर लें कि इस टाइम तक मैंने अपना सारा सिलेबस एक दफा एंड करना है। ठीक है, जब आप वो सिलेबस उस टारगेट को आप सेट कर लेंगे ना फिर आप मंथली बेसिस पे उसको डिवाइड कर लें, सब डिवाइड कर लें। फिर उसको आप वीकली बेसिस और डेली बेसिस पे, जब आप डेली बेसिस पे आपके पास टाइम लाइन आ जाएगी तो आप उसको कोशिश करते जाएंगे आपका जो डेली के टारगेट्स हैं वो आप अचीव करते जाए। तो जब आप ये करते जाएंगे तो आपका आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाएगी और आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी हो जाएंगे आपके टाइम के अंदर। Yes, Humayun, you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, आवाज़ क्लियर है मेरी? जी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि एज अ मिडिल क्लास फैमिली हमारे लिए होता है कि ग्रेजुएशन के जस्ट आफ्टर हमें ना जॉब के लिए भागना पड़ता है। तो आपका क्या इस बारे में है कि हमें जॉब पहले हमें जॉब की ट्राई करनी चाहिए या इसके अटेम्प्ट हमें फर्स्ट अटेम्प्ट इसकी देनी चाहिए? जब आप सीएसएस के लिए अब आपने देना आप फुल इसमें फुल इन हो, ठीक है, आपका फुल इंटेंशन है सीएसएस देने की, तो फिर आप पहले कोशिश करोगे इसको दे लो एक दफा, एक इसके अटेम्प्ट दे के जहाँ पहले 4 साल गुजर गया ना, 1 साल मतलब कोशिश करो इसको निकाल लो। ठीक है, अपना इसका 8-9 महीने लगा के एक अटेम्प्ट दे लो, उसके बाद अपनी जॉब वगैरह सर्च स्टार्ट कर दो। और उसमें फिर ये होता है कि आप बिल्कुल इसमें नहीं रहते, आप जब तैयारी कर रहे हैं ना तो उसके दौरान भी आपके जो 1 पेपर टेस्ट आते रहते हैं, आपके सिविल आपकी जो भी इंजीनियरिंग है उस फील्ड से आ रहे हैं, ये जनरल आते हैं 16 या 17 स्केल्स के बाकी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट्स में, आप उनकी भी तैयारी हो रही होती है तो आप वो भी साथ साथ टेस्ट देते रहते हैं। तो कोशिश करो कि पहले अटेम्प्ट दे लो। Yes, Muhammad Ali. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तावीज़ में आप मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे आप अगर कोई 2023 का जैसे देना चाह रहा हो तो उसकी प्रिपरेशन के लिए उसको उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो बिगिनर लेवल पे है, या उसको कुछ भी उसको सीएसएस की या कुछ सब्जेक्ट्स की हाउ नाउ है पड़ी। और दूसरा मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है यूटी टेक्सला से। जिस तरह आपके ऑप्शनल अगर आप जो बताए हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस में मैंने उसकी स्टडी की हुई है, मुझे भी वो अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरा ये पंजाबी अगर ठीक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है इतना पंजाबी वाला। तो बस यही मेरे क्वेश्चन थे, जरा इसको बता दें आप। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो तो ये है कि कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। ठीक है, आप अब मुझे नहीं पता किस कैंडिडेट का कितना वो है, तो मतलब ये डिफरेंट होता है। कुछ कैंडिडेट्स हैं वो 3 माह में भी कर लेते हैं, कुछ 6 माह में कर लेते हैं, कुछ 9 माह साल, कुछ फिर जो है वो 2 साल भी लग जाते हैं। तो ये तो कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। आप अपना पोटेंशियल देखते हैं और अपना जो है आप टारगेट सेट करते जाते हैं, और अगर वो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो फिर आप उसको देखते हैं, नहीं तो आप उस टारगेट्स को मॉडिफाई करते जाते हैं। ठीक है, और जो आपका दूसरा पार्ट है पंजाबी का ये है कि अगर आप उसको कर सकते हो, आपकी बोलते हो घर में, ठीक है, और अगर आप उसको रीडिंग हो पा रही है तो पंजाबी डुएबल है, कर लो पंजाबी। अगर ये नहीं हो रहा पंजाबी को स्किप कर दो। Yes, Ariba Mubin. Assalamu alaikum. First of all, congratulations and thank you for sharing your journey. मेरे 2 क्वेश्चंस थे। एक तो ये है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस और सीएसएस। तो व्हिच वन इज मच बेटर, या ये कहना ज़्यादा आसान है कि ज़्यादा इजी वाला जो है इनमें से कौन सा वाला केस है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्रिमिनोलॉजी को अगर हम एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो उसका क्या स्कोप है और उसका स्कोरिंग रेट क्या है, एंड ऑल स्टफ अबाउट दैट।
ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है ना वो CSS और PMS से रिलेटेड, तो इजी तो दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, आपको मेहनत दोनों में करनी पड़ेगी और कंपटीशन दोनों में है। जहां तक आपकी बात है बेहतर कौन सा है, तो CSS में थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा है, जो PMS है वो आपकी प्रोविंशियल लेवल की आपकी पोस्टिंग मेजरली जो है आप विद इन अ प्रोविंस रहते हैं। CSS में ये है कि आप अक्रॉस द कंट्री सर्व करते हैं, ठीक है, अक्सर आपको बल्कि फॉरेन भी आपको सर्व करने का मौका मिलता है, तो इसमें एक्सपोजर ज्यादा है और इसमें अपवर्ड जो आपकी मूवमेंट है या आपकी प्रमोशंस हैं उनके चांसेस भी ज्यादा होते हैं, इसलिए आज से CSS बेहतर है। जब आपके सब्जेक्ट की बात है क्रिमिनोलॉजी का, तो स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता नेक्स्ट ईयर का क्या है। पास्ट 2 ईयर से तो इसके स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर का ऑब्वियसली जो है प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये सीन है इसका। यस, अब्दुल रहमान आदिल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, सबसे पहले तो सर आपकी कामयाबी पे आपको सर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको पता है वैसे डिसिप्लिन जो है लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर जो CSS के कैंडिडेट्स हैं सर उनको तो कुछ एक्स्ट्रा डिसिप्लिन चाहिए होता है ना जिंदगी में, तो सर वो डिसिप्लिन कैसे मतलब लाइफ में अचीव किया जाए? पहला क्वेश्चन तो ये है सर, इसका आंसर कर दें। यार इसका आंसर यही है कि आपको मैंने जिस तरह भी बताया था, मैं अपनी टाइमलाइन बना रहा हूँ, ठीक है, जब आप डेली के टारगेट्स देख रहे हो, आप डिसिप्लिन से आउट हो रहे हो, आपके डेली के टारगेट्स आपसे अचीव नहीं हो रहे, तो उसके लिए कुछ छोटा सा ही होता है कि आप अपने लिए सजा और जजा का अमल रख लो, ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा पनिश कर सकते हो, आप चीज आपने कोई नई टारगेट अचीव किया या अगर आपने कर लिया तो आप थोड़ा अपने आप को रिलीफ दे सकते हो, आप हैंग आउट करो, आप दोस्तों के साथ घूमो फिरो, लेकिन आपसे नहीं हुआ तो अपने आप को थोड़ा पनिशमेंट करने के लिए 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लगाओ, ठीक है, नींद खराब करो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा आ जाता है वापस ट्रैक। यस, मोहम्मद कदीर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू से रिलेटेड है कि मतलब इंटरव्यू में सबसे पहले तो कौन सी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैटर करती है, और इसके बाद ये कि जो इंग्लिश है वो इंटरव्यू में कितना मैटर करती है, मतलब उसमें एक कैंडिडेट को कितना फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश में जो आपकी चीजें की मैटर करती हैं उसमें सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज है, ये 4 चीजों चेक हो रही होती हैं आपकी साइमल्टेनियसली डिफरेंट क्वेश्चनिंग के जरिए, तो चारों का इक्वल इंपॉर्टेंस आपके इंटरव्यू फेज में। यस, मेहताब हसन। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, मेरे 2 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, एक तो पार्शली आंसर हो गया है, दूसरा ये है कि बल्कि मैं पहले करता हूँ, दूसरा बाद में करता हूँ। पहला ये है कि मैं 23 के अटेम्प्ट देने का सोच रहा हूँ, अभी मैंने जो है ना कोई मेरी नाव हाउ भी ज़्यादा CSS से नहीं है, बस ये है कि मैं करंट अफेयर्स को देखता रहता हूँ, डॉन में जो ओपिनियंस वगैरह आती हैं या उनको देख लेता हूँ, और 23 में मैं ना अटेम्प्ट देने का इरादा कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी फाइनेंसेस को जो है ना वो कवर करने में लगा हुआ हूँ, कोई मतलब वेब डिज़ाइनिंग या कोई भी सर्च स्किल पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे कब तक टारगेट करना चाहिए कि कब मुझे चाहिए कि बिल्कुल मैं स्टार्ट कर दूं, अब और मज़ीद लेट किया तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, लाइक कब से मुझे एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए या कब से मुझे टोटली सीरियस होके इन पे इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन मोस्टली यही पूछना था कि फ्लुएंसी इंग्लिश स्पोकन में कितनी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट की या मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, 17 सेशन है मेरा, तो हमारी फ्लुएंसी बेहतर होती है, स्पोकन में भी हम ठीक बोल लेते हैं, लेकिन वो जो समटाइम्स हम वर्ल्ड टाइम्स पे इंटरव्यू देखते हैं तो उनकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है और उनकी वोकैब भी बहुत अच्छी होती है, तो हमें कितना अपनी फ्लुएंसी पे कितना काम करना चाहिए या हम किस तरह से काम कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन वो यही था कि मुझे कब से टोटली सीरियस होकर काम करना शुरू कर देना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, पहले क्वेश्चन का तो मेरे ख्याल से मैंने आपका आंसर कर दिया, उसका यही है कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे आपके लिए बेहतरी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो इंटरव्यू वाली बात है, आपकी फ्लुएंसी वाली बात बिल्कुल ठीक है, इंजीनियर्स का हमारा ऐसे ही है कि फ्लुएंसी लेवल हमारा इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आज में कोशिश अब यही करोगे यार जितना इंप्रूव कर सकते हो करो, ठीक है, जहां आपको मौका मिलता है आप बोलो स्टेज पे, ठीक है, आप डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो तो करो, जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, उतनी आपकी फ्लुएंसी भी ठीक होगी। यस, अब्दुल राफे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
भाई what made you opt for CS exam after a pure engineering degree like civil engineering? मतलब आपका mindset किस तरह का था? यार इस तरह है कि सिविल सीएसएस का तो था माइंड में पहले ही करना था। सिविल इंजीनियरिंग इसलिए की कि सीएसएस का जो फेज है सारा ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, आपको नहीं पता, आप जितनी मर्जी अच्छी अटेम्प्ट दे लें, आपकी जितनी मर्जी अच्छा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता होता एट द एंड ऑफ द डे। तो सिविल इंजीनियरिंग का ये है कि आपके पास सेकंड ऑप्शन सिक्योर हो जाता है, प्रोफेशनल आपके पास कैरियर होता है एज एन ऑल्टरनेट। तो इसलिए की थी सिविल इंजीनियरिंग। Yes, Harun Ali Sultan. Harun Ali Sultan, ask your question. Ahmed Raza. That's like 5 to 10, 5 minutes, maximum 5 minutes. आवाज आ रही है आपको? जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक दिन में मतलब डेली की पर्पस पे कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, कि कितना टाइम देना चाहिए इसकी स्टडीज को ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस किस तरह से मैनेज करते हैं ना, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होते हैं और कोई प्रिपरेशन गैप भी नहीं होता, और इतना सारा मेमोराइज किस तरह से करते हैं कि मसला तो नहीं पड़ता। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने किस तरह से की थी ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की लैक कर रही होती हैं, इंसान को नहीं पता होता कि किस तरह से उसको ऑप्ट करना है और चीज़ें को लेके चलना है। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें टाइम का तो ये है कि आप टाइम ऐसा नहीं होता आप डेली का, उसकी एवरेज यही होती है कि आप 6 to 7 आवर्स कोशिश करो, पढ़ो 8 आवर्स पढ़ो। लेकिन आपने जो टारगेट्स आपने टाइमलाइन बताई ना, टारगेट्स बनाते हैं, तो आप कोशिश करो कि आपके डेली के टारगेट्स अचीव हो, चाहे वो 2 घंटे में हो जाए या 10 घंटे में हो जाए। ठीक है, तो आपने टारगेट्स अचीव करने हैं ताकि आपका जो आपने सेट आपने वो किया हुआ आपका टारगेट वो अचीव हो जाए, डेडलाइन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसका पूछा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में एक तो साइकोलॉजिकल फेज की तो आपकी यही तैयारी है कि आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी स्पीकिंग की, आपकी ग्रुप स्किल्स की वो प्रैक्टिस की। और जो इंटरव्यू है उसमें ये होता है कि उसका आपको सिलेबस कोई नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई उन्होंने आपको सेट एरियाज नहीं दिए हुए, तो आपको हर चीज पढ़नी पड़ती है जो आपको समझ में आ रहा है। जितना आपके पास टाइम है उसमें आप जितना कुछ कवर कर सकते हैं आप करते हैं, और बाकी फिर आपका लक फैक्टर होता है कि आप किस एरियाज में क्वेश्चन किया जाते हैं। Now we are going for last question. Amna, you can ask your question. सर मेरा क्वेश्चन है मॉक एग्जाम से रिलेटेड कि अगर आपने मतलब आप मॉक एग्जाम ना दें और खुद ही अपने सीएसएस के पास पेपर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें एक दफ़ा प्रैक्टिस के लिए, तो वो सफिशिएंट है या मॉक एग्जाम देने होते हैं लाजमी? अच्छा ठीक है, आपने थैंक यू क्वेश्चन अच्छा किया। वो अहमद का भी क्वेश्चन मिस हो गया था। जो आपका प्रेशर है, अहमद ने बात की ना, प्रेशर 2 पेपर आपने पर डे प्रेशर कैसे मैनेज करना है, तो उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो मॉक एग्जाम है। जितने आप ज्यादा मॉक एग्जाम देंगे उतना आप उस फेज से एक दफा गुजर जाएंगे। ठीक है, अकेडमीज ने जो है वो बिल्कुल एफपीएससी के पैटर्न पे मॉक एग्जाम्स डिजाइन किए होते हैं। डेली आपके 2 पेपर्स हो रहे होते हैं और उसी तरह 6 दिन में 12 पेपर। जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो आपका जो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स है वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड ही है, जितना मॉक्स देंगे आपको उतना फायदा होता है। ठीक है, तो मॉक्स दें। माशाल्लाह भाई, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को एलेबोरेट किया, तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ओवर टू यू अरफा, आप कह सकती हैं। Thank you, sir. Is there anything you would like to add before we wrap up? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, फिर से आप लोगों ने मुझे दावत दी कि आके मैं स्टूडेंट के साथ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। बाकी सबके लिए एडवाइस यही है कि यार जो टिप्स दी हैं उन पे काम करो। ठीक है, टेंशन वगैरह नहीं लेनी। मोटिवेशन अगर आपका लेवल डाउन हो रहा है तो यूट्यूब से वीडियोस वगैरह, सक्सेस स्टोरीज वगैरह लगा के देख लें। ठीक है, बाकी तैयारी करो अच्छे से और इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखो, और कॉन्फिडेंस जो है वो आपका मेन फैक्टर है, अपने आप पे यकीन रखना।
Thank you everyone. Thank you, Sir Aftab Munir. We are very grateful for your time and efforts. Your ability to present the subject in such an interesting way produced one of the most memorable evenings. We hope to hear from you again. Last but not the least, special thanks goes to our President, Mr. Anas Asif. Sir, would you like to say anything? Bismillah Rahman Rahim. I am Muhammad Anas Asif, President of ICUT Texla. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो आफ्ताब भाई को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और ये बहुत ही अच्छा सेशन एक अरेंज हुआ। इसके बाद सलीम भाई का शुक्रिया, एहसन भाई USFC के जो फाउंडर हैं, बाकी सारे स्टूडेंट का जो जिन्होंने ज्वाइन किया हमारे साथ। इंशाल्लाह आइस आपके लिए ऐसी मुफीद इवेंट लेकर आती रहेगी फिज़िकली और ऑनलाइन। तो आप हमें अब हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो कर सकते हैं। इस इवेंट की रिकॉर्डिंग भी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। थैंक यू मेरे साइड से। Thank you, Mr. Anas. Special thanks goes to our event heads, Mr. Sohaib Habib, Mr. Ahmed Ijaz, and Mr. Kareem Anwar, and to our team. Without each one of you, it might not have been possible. The enthusiasm in which you all handled the event was truly exceptional. I sincerely appreciate your role and hope that the good work continues in the future as well. That's all from my side. Allah Hafiz.